Assalamu alaikum everyone. This is Sagir Ahmad, System Administrator, Shahid Benazir Bhutto University, Shahid Benazirabad. So this is the tutorial for the Google Classroom, how to teach online. So basically ये मैंने जो online login किया है, Gmail का ID है. This is the brand new. So I'm starting from the scratch. If you go to the Google and write down the Google Classroom, so this is the email classroom.google.com. अगर आप classroom.google.com पे जाएंगे तो डायरेक्टली you can sign up directly from the SPBUSPA email which I am already signed in over here. तो इस पे हम क्लिक करेंगे as a continue, so it will ask me for the either you are a student or teacher, so I'm gonna click on a teacher. So जैसे ही टीचर पे क्लिक करेंगे, so this is the platform we are going to use. This is the classroom settings and so on. So simply you can add the classroom first here because this is the blank screen. जैसे ही हमने first time login किया तो blank screen है, there is no class, so we need to create a class. Let's create the class over here. So class name would be 2K, let's say 19. Section, अगर आपके पास section है तो otherwise just leave the section. Introduction to computers. Rooms, just leave it room. So I think in our case there are two mandatory fields over here. Which one? First one is the class name and other one is the subject name. So let's create the class and there you go. ये आपका classroom बन गया. On the left hand side there is a menu. You can select the menu and you can choose the class as well, because as a teacher you will have a bunch of batches over here and class over here. So you can create a lot of as many as you want. So in this class 2K19 I have a classwork, people and grades. So let's say first of all anybody can join also through the code as well, but through the codes if अगर आप कोड सबको सेंड करेंगे तो एनोनमस पीपल भी उसमें ऐड हो सकते हैं, पर अगर आप डायरेक्टली अगर पीपल जो आप ऐड करें एज अ स्टूडेंट ओवर हेयर बाय द ईमेल आईडी, देन ये प्रॉब्लम नहीं होगा. लेट्स से आई एम गोइंग टू ऐड माय one of my colleague name as a student, zulfkar.sheikh@gmail.com, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स वगैरह होंगे उसके पास जीमेल होगी, हॉटमेल होगी, याहू या एनी ईमेल दे हैव. You can add them and invite them. So you will see यहाँ पे आ जाएगा कि Zulfikar Sheikh has been added into your system. So it is invited, but जैसे ही उसके पास invitation चला जाएगा कि वो Google Classroom को join करें, कुछ देर के बाद अगर आप इसको fresh करेंगे तो he has been joined as a student. जब तक ये ज्वाइन करे तब तक मैं आपको थोड़ा ये जो है क्लास वर्क के बारे में बता दूं. इन द क्लास वर्क you can create the assignments, you can create the questions, you can create the topics, you can create the anything you want. बेसिकली जब टॉपिक्स और क्लास वर्क का इंट्रोडक्शन आ जाता है तो उसमें आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने काफ़ी सारे जो आपका जो कोर्स है ऑलमोस्ट 40 to 50% जो आपने क्लियर कर दिया है, उसमें हम ये कर सकते हैं कि इसमें एक टॉपिक मटेरियल स्टार्ट कर लें और इसमें कहें कि प्रीवियस लेक्चर्स, और इसमें आप डिटेल दे दें लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन, 2 प्रोग्रामिंग, 3 असाइनमेंट,
तो इस तरह से आप उनको ये पूरे टॉपिक्स जो हैं जो आपने क्लियर कर दिए वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, एंड यू कैन आल्सो ऐड द फाइल्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड सो ऑन, इफ एनीथिंग, देन यू कैन जस्ट पोस्ट इट आउट। इससे ये होगा कि सारे स्टूडेंट को पता चल जाएगा कि प्रीवियस लेक्चर में अगर आप वो क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे एक जो है रो बन जाएगी, यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट क्लिक करेगा तो उसको ये पूरा जो डिटेल है वो पूरी डिटेल आ जाएगी। Now let's go to the people. So you can see it was invited. Now Zulfikar Sheikh has been joined as a student. So पहले मैं थोड़ा यहाँ पे ब्रीफ कर लूँ। तो यहाँ पे आप असाइनमेंट भी बना सकते हैं। इस जैसे कि इस असाइनमेंट में मैं कहता हूँ कि you create some variable, some text here and create the assignment। और यहाँ पे आप पॉइंटिंग भी बता सकते हैं कि इस असाइनमेंट के कितने मार्क्स हैं। फॉर एग्जांपल इस असाइनमेंट के 20 मार्क हैं, तो कौन से क्लास में ये जा रही है, 2K19 ऑफ कोर्स, विच वी आर ऑलरेडी इन। ऑल स्टूडेंट और सिलेक्टेड स्टूडेंट को एक असाइनमेंट दें, सिलेक्टेड स्टूडेंट को आप दूसरी भी असाइनमेंट दे सकते हैं। ड्यू डेट इसमें डाल सकते हैं कि परसों तक इसकी ड्यू डेट है, टाइम भी ऑप्शनल है। तो उसके बाद जो है बाकी इसको असाइन कर लें तो सारे स्टूडेंट्स को ये जो है असाइनमेंट आपकी असाइंड हो जाएगी। So this is very simple, and you see the assignment has been over here. If you go inside this, you can see the assignment has been assigned to the one student, since here is the one student for example. But if you have 100 student, there 100 would be here, और जो assignment कर लेगा वो turn in हो जाएगा। और आप पर्सनली एक एक की असाइनमेंट चेक करके, इवन दो उसके साथ कम्युनिकेशन भी हो सकती है, कमेंट भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जुल्फकार प्लीज डू इट ऑन अ पीरियोडिक बेसिस, इस तरह से ये हो सकता है। सो जैसे ही मैंने जुल्फकार को कहा कि ये प्रायोरिटी बेसिस पे, तो ये प्राइवेट कमेंट है टू द स्पेसिफिक दिस स्टूडेंट। अगर आप डायरेक्टली सब स्टूडेंट को कोई कमेंट करना चाहते हैं तो वो तो आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, या असाइनमेंट में ही डायरेक्टली उसको ऐड कर सकते हैं एज अ कमेंट। सो दिस इज हाउ इट्स गोना वर्क, असाइनमेंट और ये चीज़ें। बाकी अब आ जाते हैं लाइव क्लासरूम पे। लेट्स गो टू द क्लास नाउ। हाउ यू कैन start the class and schedule the class live and record the class. That's very simple. If you go to the Google Calendar, once you click on a calendar, you can manage all the calendar. ठीक है, तो इस तरह ये जो साइड में है, लेट्स से मैं सिर्फ 2K19 को अभी करूँगा, तो मैं दूसरों को अनसेलेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो मैं कैलेंडर में ये जो है अभी एक क्लास बनाता हूँ। अभी जो टाइम हुआ है, डेट है 24 और टाइम हो रहा है अभी 4 बजने वाले हैं। तो मैं अभी ही एक क्लासरूम बनाता हूँ, क्लास। इसमें सिर्फ आपको यहाँ पे मोर में जाके अब ऐड करना पड़ेगा कि हम यहाँ पे जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूज़ करेंगे, गूगल मीट यूज़ करेंगे फॉर द लाइव क्लासरूम एंड रिकॉर्डिंग पर्पस। इसको यहाँ से करके यहाँ पे सारे, यहाँ पे आप इसको बेशक ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि 2K19 जो बैच है इसको ज्वाइन कर सके। जैसे ही मैं इसको सेंड करूँगा तो ये कह रहे हैं कि इनविटेशन भी चली जाएगी कि आपके जो टीचर ने जो है ये क्लास बनाया है और वो ज्वाइन करेगा इस टाइम पे। मैंने तो अभी किया है, आप कल परसों का भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम का कर सकते हैं। फिर आप इस पे जैसे ही, अब ये आपके कैलेंडर में वंस ये ज्वाइन आ गया, मतलब क्लास, इसका आप टॉपिक दे दीजिएगा, लेक्चर नंबर दे दीजिएगा, तो इसमें सारे आपके
कैलेंडर में वन टू ऑल आपके पास आ जाएंगे। तो लेट्स से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ यहाँ से, तो आप इसको क्लिक करेंगे ज्वाइन विद द गूगल मीट। अच्छा, जैसे ही मैं इसको ज्वाइन करूँगा, ओके, अब ये जो है ज्वाइन हो गया है। यहाँ पे पार्टिसिपेट आप देख सकते हैं कि हाउ मेनी पीपल आर देयर। सो दिस इज माई सेल्फ एज अ टीचर, यू and another student, and his microphone is off, and you can chat all together to your student. You can send messages to your student as well. और यहाँ पे जो है आपके पास एक ऑप्शन आता है रिकॉर्डिंग का। जैसे इसको मैं क्लिक करूँगा कि रिकॉर्ड दिस मीटिंग, सो ये क्लास रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि समटाइम्स आप जो कुछ ऐसे क्लासेस लेते हैं जिसकी रिकॉर्डिंग की ज़रूरत नहीं है, तो इट्स अप टू यू, आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं या नहीं। अब ये जो है आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि रिकॉर्डिंग इट इज़ इन अ प्रोसेस, नाउ इट्स बिकम अ रेड, so now it is recording itself. Okay, so Zulfikar, can you hear me? Hello sir, can you hear me sir? I can hear you. Yes, I can hear you. So we are on the page. इस तरह से कोई भी स्टूडेंट जो है हमसे कम्युनिकेट डायरेक्टली कर सकता है। यहाँ से 250 students are available, can join this meeting, and recording is already over here, and they can talk to each other, and they can chat to each other. They can turn off, teacher can turn off their camera and turn off, and the meeting details are here, and they can present the windows for the Microsoft etc as well. So this is really simple how it works. Now I will show you before closing this class. You can close the class by leaving this call, or first you can just stop the recording as well, up to you, but it will record automatically even though you click over here. But as a formal procedure, I'm gonna stop my recording and end the session. Now if I go back to my classroom, oh yes, now you can see the assignment is turned in. So जुल्फ़िकार ने assignment complete कर दी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने एक वर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पे डाला हुआ है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जिसमें उसने असाइनमेंट लिखी है, और वो आप देख सकते हैं। और इस पे आप उसको यहाँ पे स्कोर दे सकते हैं कि now he says that sir assignment is done, and you can see the assignment over here, and जो है अब इस असाइनमेंट में आप इसको मार्क्स यहाँ पे दे सकते हैं। आउट ऑफ 20 आई एम गोना गिव हिम 18 मार्क्स। सो नाउ इट्स सेविंग। सो ये अब जो है स्टूडेंट को शो होगा कि आपने इस असाइनमेंट में जो है 18 मार्क्स ली हुई हैं। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, व्हेन वी गो टू द क्लासरूम एंड ओके, सो जो हमने ऑनलाइन क्लास लिया था रिकॉर्डिंग के लिए, जो जैसे ही हमने उसको स्टॉप रिकॉर्डिंग करके एंड कर दिया था, तो 10 to 15 मिनट्स लगते हैं। वो ऑटोमेटिकली फिर जो है आपके गूगल कैलेंडर में अगर आप जाएंगे 10 to 15 मिनट्स के बाद, क्योंकि वो वीडियो जो होती है सेव होती है, जनरेट होती है, उसके बाद जो है आपकी गूगल ड्राइव में चली जाती है। तो अगर आप उसके बाद जाएंगे तो नाउ यू कैन सी द वीडियो ओवर हियर। Now any student can see this video, watch video anytime, anywhere, from anywhere. You just have to click on that and you can watch this video. So this is how it is easy। जो हमने रिकॉर्ड किया था, ये हमने जो है रिकॉर्ड किया था लेक्चर। अब इसकी पूरी रिकॉर्डिंग जो है आपके पास उसी दिन पे इस कैलेंडर के साथ इंटीग्रेट हो गई, और ये आपके गूगल ड्राइव में चली गई है।
तो ये आपका रिकॉर्डिंग हो गया एंड दे हैव आल्सो सेंड यू द एज अ टीचर दे हैव सेंड यू द नोटिफिकेशन दैट द रिकॉर्डिंग हैज़ बीन अपलोडेड ऑन द गूगल ड्राइव। वो पूरा आपको ड्राइव का बता रहा है कि कहाँ पे अपलोड हुई है। यहाँ पे आप डायरेक्टली उस रिकॉर्डिंग को देख भी सकते हैं। एंड वन फाइनल थिंग, जैसे ही आप इस क्लासरूम में होते हैं तो सेटिंग्स होती हैं इसकी। सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे तो ऊपर ऊपर जो मैंने कहा था कि कोई भी क्लास कोड के थ्रू भी आपका ज्वाइन कर सकता है, तो वो बट माय रिकमेंडेशन इज़ टू डिसेबल दिस, बिकॉज कोई भी अननोन पर्सन थ्रू कोड के लाइव हो सकता है। So I think it is not recommended. The recommended is you can just add the student over here, then they are authorized and आप इवन यहाँ पे 2 टीचर्स भी एक सब्जेक्ट में ऐड हो सकते हैं। यू कैन इनवाइट द टीचर एज वेल। So this is I think very easy. Now you can see all the things over here. Our communication, our assignment, everything is here. And also your grading is over here as well, so you can see that I have give the 18 marks to the Zulfikar out of 20. अब it's up to you कि आप इसको यहाँ पे मैनेज करना चाहते हैं या नहीं, but this is all and this is all the requirement for the LMS and everything. So you can create another classes over here. यहाँ पे आप दूसरे क्लासेस यहाँ पे जाके क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। So if you have any question, please let us know. Thank you so much.